নমস্কার সমস্ত দর্শকଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର BA40 132 କୋର୍ସକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି 12 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଥିରେ ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ମାମୁଦ, ଗଜନୀର ମାମୁଦ ଓ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀର ମହମ୍ମଦ। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆରବୀୟ ମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ। ସିଏ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ। ମାନେ ରାସ୍ତା ଫିଟେଇ ଦେଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ବା ଆରବୀୟ ମାନେ ଭାରତକୁ। ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ଗଜନୀ ଆସିଲେ, ଘୋରୀ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। 11 ଓ 12 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଏକ ସୁଦୃଢ ଆସନ ଜମେଇ ସାରିଥିଲେ। ତୁର୍କୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର, ଏ ଭାରତ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦଉଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା। ତୁର୍କୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେଇଠି ଯୋଡ଼ାଏ ରାଜବଂଶ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ବା ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କଲା ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଲା। ସେ ହେଉଛି ଗଜନୀ ଆଉ ଘୋରୀ। ଘୋରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ, ଗଜନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନାମିତ କରିଥାଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାକୁ ଚୌଦପା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଗଲେ ସେମାନେ ଦବିଗଲେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯିଏ ଜିତିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଭାରତ ପଡ଼େ। ଏମିତି ସେମାନେ ସେଆଡ଼ୁ ପେଲି ହେଇ ଆସିଲେ। ତାମାନେ ସେଠୁ କିଛି ଆଇର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ଆବାସସ୍ଥଳୀର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲିପ୍ସୁ ବି ବଢ଼ିଲା। ଏମିତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତ, କାବୁଲ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର, ଐତିହାସିକ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ଆଲପତଜିନ୍ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗଜନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଜନୀ ଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ମଧ୍ୟ, ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ମଙ୍ଗଲ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ଡରିକିରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖର ଆସେଟ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚମାନର ଘୋଡ଼ା। ଉଚ୍ଚମାନର ଘୋଡ଼ାର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଥିଲେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ରପ୍ତାନି କରି ଭଲ ପଇସା ସେମାନେ ଆୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସାୟ। କ୍ରୀତଦାସ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ କିଣା ବିକା ହଉଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ, ଯୋଉଥିରେ 34ଟା ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା,
सेठी गजनीश माने आसिक पहुंची गले। ये अंचल गोटे मुख्य प्राधान्य हूँ ये अंचल प्रचुर लुहा पत्थर पहाड़ देखा उन्नत मानव लुहा एठू से लुहा पत्थर संग्रह कर उन्नत मानर अस्त्र शस्त्र या अफगानिस्तान यही अंचल जो अधीन को आसला से लुहा पत्थर खଣି पाईगले से उन्नत धरण सुदृढ़ अस्त्र सब विभिन्न प्रकार अस्त्र लगे से एकमात्र जीविका थिला युद्ध करने एवं लुंठन करने तो अस्त्र शस्त्र एकांत आवश्यक पड़ुला। से समय मामूद गजनू आसिक घोरी मान अपराहित करते ये हूँ 1020 ख्रीष्टाब्द कथा जो घोरी मान परास्त होते किंतु घोरी मान से घोरी मान इम्पोर्टेंस आसी नथिला। गजनीज माने प्रथमे भारत दिगरे अग्रसर यही आसुले एमती कहीपर से बाध्य थे भारत आड़े आसवाई उद्देश्य थिला प्रचुर अर्थ आमती आरबीय माने प्रचार कर सारी मध्य एशिया बड़ प्रचार प्रसार थिला जे भारत हूँ सोने की चिड़िया कौन से मत भारत में पहुंची गले प्रचुर धन संपत्तिर मालिक हो पारे विश्वास थिला गोटे सहयोग मिलला कौन 20,000 योद्धा स्वतःप्रवृत्त हो इस्लाम धर्म दीक्षित है आसिक गजनी मामूद को पाखे उपस्थित हेले से निजको ऑफर कले से निजको डिस्पोजल छाड़ीदे आमको धर्म प्रचार पर विनियोग करा धर्म प्रचार पर युद्ध करेंगे तेणु ये 20,000 डेडिकेटेड योद्धा डिस्पोजल को आस तेणु ये गोटे बड़ आसेट है से साहस कले आगु आगु माड़ी जावाई। गजनी पूर्व इतिहास आम गजनी पूर्व इतिहास सामान्य आलोकपात करवा। गजनी प्रथम राजा है अल्पजीन जे निज को 963 ख्रीष्टाब्द स्वाधीन सुल्तान भाव निज को परिगणित करते से होता कौन जे सुल्तान होते ताको खलीफा सम्मति प्रदान करते रिकग्निशन करते तेणु अल्पजीन को 963 मसीह सुल्तान हबार सर्टिफिकेट मिलता 977 पुओ सुबकत जैन पुओ सुबकत जैन भारत तो आसी न पंजाब पर्यंत अग्रसर होते पंजाब पूर्व से हिंदू शाही अंचल अवस्थान कले से हिंदू शाही राजा थिले जयपाल जयपाल विरोध कर बर आशा करते सहित बंधुत्व कले सीमा राज्य सीमावर्ती राज्य सुरक्षित हो पार और एमाने जेहेतु वैदेशिक एमाने किसी धन संपत्ति नहीं फेरी जीवे किंतु घटना हला उल्टा सुबकत जैन आक्रमण कले जयपाल को 1001 ख्रीष्टाब्द गोटे भीषण युद्ध है जयपाल और सुबकत जैन भितर ये युद्ध जयपाल परास्त है सुबकत जैन गजनी मानकर साम्राज्य पलि आसला पेशवार व हिंद पर्यंत पेशवार पर्यंत से अग्रसर आसिले जयपाल किंतु याकू निजर त्रुटि मन कले से पश्चाताप कले मूल से जदि
ସେଠି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କଲେ ଏବଂ ସେ ଶୁଣାଯାଏ ଅଗ୍ନି ଝାସ ଦେଲେ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଜୟପାଲଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦ ପାଲ ସେ କିନ୍ତୁ ପଛେଇ ଯିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେ ଅନବରତ ସୈନ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରି ଗଜନୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାରତକୁ ତଡ଼ିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଆନନ୍ଦ ପାଳଙ୍କ ସହିତ ମାମୁଦଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 1010ରେ ଆନନ୍ଦ ପାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବଶ୍ୟ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଜନୀ ମାନେ ବା ମାମୁଦ ପଞ୍ଜାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଳେଇଲା। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଭାରତ ପଞ୍ଜାବ, ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ତାପରେ 1015ରେ ସେ ଲାହୋର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲାହୋର ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ମୁଲତାନ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏଇନା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ। ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାର ସୂଚନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଭାରତ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆରବୀୟ ମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା ନଥିଲା, କୋଅପରେସନ ନଥିଲା। ଫଳରେ ବୈଦେଶିକ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଦଉଛି। ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର, ପାଲସ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅନବରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚାନ୍ଦଲ୍ୟ ମାନେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚୌହାନ ମାନେ, ଗୁଜରାଟରେ ଚାଲୁକ୍ୟ, ମାଳବରେ ପରମାର ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଦିଦା ନାମକ ଜଣେ ରାଣୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏକାଧିକ 26 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ଦିଦା କାଶ୍ମୀରରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା ନଥିଲା ବା କୋଅପରେସନ ନଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚାନ୍ଦଲ୍ୟ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚୌହାନ, ଗୁଜରାଟରେ ଚାଲୁକ୍ୟ, ମାଳବରେ ପରମାର ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଦିଦା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ନଥିଲା କୋଅପରେସନ, ତେଣୁ ମାମୁଦକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାଖାପାଖି ଦିଲ୍ଲୀ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ଆସିଲେ। ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ମଥୁରାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ। ଇତିହାସର ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି ମାମୁଦଙ୍କର ମଥୁରା ଲୁଣ୍ଠନ। ମଥୁରା ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ବହୁ ଦାମୀ ଦାମୀ ଶିଳାଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଶେଷରେ ତ ମଥୁରାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି। ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 100 ଲକ୍ଷ ଦିନାର ଦରକାର ହବ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳୀ କାରିଗର ମାନେ ଲାଗିଲେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଏତେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଥୁରା ମଝିରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେଥିରେ ତାର ଖୁମ୍ବ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହୀରାଲୀଳା ଖଚିତ ହେଇକି ଥିଲା। ହୀରାଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଭରପୁର ଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିରରେ।
ये मंदिर टाक भांगी से चुरमार करदे एवं सब सुना हीरा हीरा बोधे रूपा से नौ नथिले सुना गुड़ाक କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଁ ଯଦି ବେଶୀ ଭାରି ନହେଲା ସେମିତି କିଛି 20 ଦିନ ଧରିକିରି ସେ ମଥୁରା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିଲା ଶହ ଶହ ଓଟ ପିଠିରେ ये सब धन संपत्ति ये जो सुना रूपा बोध हुए सुना नौनथिले खाली जो आम रत्न पत्थर कहू रत्न पत्थर से बोझे करी नवा नहीं स्वदेश को प्रत्यावर्तन कले एमती भी शुणा जाए जे ओट मरुभूमि एत लोड होगा ओट मरुभूमि पड़िकी मरले जाओ ता सहित से पाखापाखि 5000 कृतदास को सांगे नहीं गले कारण सब कृतदास मान विपणी थे भारतीय मान को कृतदास कर नहीं गले एवं मध्य एशिया बिक्री करागला यहीपरी सी आसिक कनौज रे पहुंची गले गुर्जर प्रतिहार मान कनौज रे थिले सहज से परास्त करी कनौज पर्यंत साम्राज्य विस्तारित हो गला बर्तमान पाखे प्रचुर संपत्ति हो गला से अनेक धन संपत्ति मालिक हो गले फल किसी अवश्य खलीफा को देइथबे उपहार तेणु खलीफा सुल्तान उपाधि भूषित करदे पंजाब रे से हाँ पंजाब से पुणी धीरे धीरे कोस्टाल बेल्ट आमर उपकूलवर्ती अंचल देकी सोमनाथ मंदिर रे पहुंचे सोमनाथ मंदिर लुंठन होची तांकर जीवनर गोटे बड़ अध्याय यार गुरुत्व आम आलोचना करवा 1025-26 रे से गुजरात पहुंची सोमनाथ मंदिर आक्रमण करते प्राय 50,000 हिंदू को हत्या करते गोटे उत्सव थिला हिंदू मान एकत्रित होते धर्मस्थली हिंदू मान एकत्रित होते हत्या करागला प्रचुर मात्रा रे धन संपत्ति मंदिर में गच्छित था जहाँ से करागत करनेले एवं अधिकांश पैसा से सैन्य मान भीतर वितरण कले जो मैंने साहाय्य करते युद्ध लाभ करने वितरण कर संतुष्ट कले से परवर्ती समय अनुगत होकर रहे किंतु सोमनाथ मंदिर हाँ आ गए बड़ कथा सोमनाथ मंदिर लिंग को से खंड खंड कर भांगिक राजप्रसाद पहाचरे नहीं पकड़े जामा मस्जिद पहाचरे पकड़े तार उद्देश्य हूँ जे कई लोक एक मुसलमान मस्जिद भीतर जीव राजप्रसाद को जीव से लिंग उपर चढ़ी जावाई बाध्य तो सी भारतीय धर्म भावना को कुठारघात करने लेवल पर्यंत चलीगले सेमती देखा गले मुसलमान मान सहित भारतीय मानकर कौन तिक्तता नथिला किंतु तांका मनरे जदियो से निराकार उपासक भारतीय माने हिंदू माने सनातन धर्मी जेहेतु आकार उपासक मूर्ति पूजार उपासक लुंठन पर्यंत ठीक अच्छे किंतु धर्म भावना को आघात करने से कहीं कुंठाबोध कले नहीं से आज पर्यटन गोटे मिस्ट्री मन भीतर एत तिक्तता कहीं आसला तार प्रभाव रे कौन है मुसलमान मान प्रति हिंदू मान मन में तिक्तता देखादेला ये जो तिक्त अनुभूति धन संपत्ति लुंठन है जी नुह देवता मूर्ति को जो अपमान करागला से भारतीय माने धीरे धीरे हिंसा परायण हो उठे
यार प्रभाव मत देखा मिलता से जे भल ईश्वर को धर्म भावना को कुठारघात कर भलरे रहे ता नुह से जेतबळे स्वदेश को प्रत्यावर्तन कले मरुभूमि दे अधिकांश सैन्य तांकर बाटरे पड़े मले जाठ माने मरुभूमि भितर गरिला युद्ध करी सेमानकु छिन्न भिन्न करि पके एवं सेमाने खूब क्वचित लोक गजनी रे पहुंची पारले आ धन संपत्ति भी कहा जाए जे किछि मरुभूमि रे दबी गला आ किछि तांको देश रे पहुंची पारला एही परी महमूद तांको साम्राज्य को एक आकार दबारे समर्थ होइतले एना गजनी मानकर पतन आरंभ हो गला एवं घोरी माने ये घोरी माने वर्तमान ताक स्थान पूरण करने को लगे गजनी रो पश्चिम रे एक छोट राज्य घोर थिला जहाकू जो घोर माने घोरी माने शासन घोर होची अंचल ना सेठी जने राजा हेले ताका ना होची मोहम्मद मोहम्मद मुइउद्दीन से 1163 गजनी सिंहासन घोर सिंहासन बसिले एवं धीरे धीरे गजनी अधीन को आसीगला गजनी महमूद पतन है एना घोरी मोहम्मद घोरी मध्य एशिया रे दायित्व सिंहासन आरोहण कले एवं जेहेतु महमूद रास्ता फिटी सारी थिले भारत को से भारत दिगरे जो जो अंचल गजनी अधीन से सब अंचल ऑटोमेटिकली अधीन को आसीगला तेणु जो माने विरोध करिया को चाहिए से दमन करिया उद्देश्य भारत अभिमुखे यात्रा कले 1200 शताब्दी बेलू भारत राजनैतिक अवस्था कौन थी भारत राजनैतिक अवस्था से थिला जहाँ गजनी आसला बड़े भी थिला एठी गोटे छोट कहानी उपस्थापित करा जाय पारे समस्त प्राय जानी पृथ्वीराज और संयुक्ता का कहानी तथा मुझे संक्षेप कहीदे किसी ऐतिहासिक माने ये कहानी को ऐतिहासिक तथ्य बोली ग्रहण करती ना तथापि जहाँ भी हो कनौजर राजा जयचंद्र का सहित दिल्ली पृथ्वीराज चौहान तिक्त दी जन जाक खूब शक्तिशाली राजा थे तिक्तता रही कारण पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र कन्या संयुक्ता को अपहरण कर अपहरण कर माने नुह जबरदस्ती उठे आनी नथिले जहाँ पृथ्वीराज रसोरे जो ग्रंथ लिखा जाइए बादरे लिखिंट पृथ्वीराज रस से उल्लेख अच्छी जयचंद्र झी हूँ संयुक्ता जी कि मने मने पृथ्वीराज को बरण करते जो स्वयंवर सभा अनुष्ठित है से जय पृथ्वीराज सेठू द्वार गोटे द्वारपाल बेश पहुंचले और संयुक्ता को अपहरण कर भीतर तिक्तता बढ़ीगला कारण जहाँ हो ना कहीं जोड़े शक्तिशाली राजपूत राजा का भीतर तिक्ततार सुजोग नहीं घोरी भारत रे प्रवेश करने सुजोग पाइले घोरी प्रथम के 1191 तिरोरी ठारे पृथ्वीराज चौहान को भेटे ये युद्ध रे घोरी सांघातिक भाव परास्त हेले एवं आहत मध्य हेले
फल से बाध्य हेले प्रत्यावर्तन करने एवं पूरा दम रे पूरा शक्ति संचय करी से पुणी आर वर्ष 1192 आसिक दिल्ली पाखापाखि पहुंचे प्रथम थर जो प्रथम चिरोली युद्ध 1191 दिल्ली रे पहुंचा पृथ्वीराज मौका दे नथिले किंतु 1992 से पशि आसिले एवं ये युद्ध रे पृथ्वीराज परास्त हेले परास्त होवार कारण होची से टिके अंडर एस्टिमेट कले प्रथम युद्ध रे जेहेतु से पराजय लाभ करथिले तेणु पृथ्वीराज द्वितीय युद्ध को एते गुरुत्व देले नहीं द्वितीय कारण होची एथर से माने घोरी हेले बा गजनी माने मध्य एशियार जो मुसलमान आक्रमणकारी से माने युद्धर निपुण थे आम ये विषय टिके परे आलोचना करवा एना द्वितीय तिरोरी युद्ध 1192 पृथ्वीराज को परास्त करा से ना योजना कले गंगा अववाहिका निजर साम्राज्य विस्तार करने से घोरी किंतु गोटे सुंदर प्रथा बा गोटे सुंदर पद्धति अवलंबन करुले जो राजा मान परास्त करते दंड दौन कि राज्य अपसारण कर कारण सी जानी सेठिकार जलवायु शासन पद्धति एवं सामाजिक रीतिनीति सहित खाप खाई पारे तेणु से राजा को से पुणी पुनर्प्रतिष्ठित कर आगे जाते न्याय दिल्ली रे गोविंद राज को से परास्त कले पुणी दिल्ली रे अवस्थापित करी आजमेर अंचल को आक्रमण कले आजमेर को जय कला जड़े कृतराज थे परवर्ती काल प्रधान सुल्तान भाव से देखा कुतुबुद्दीन ऐबक को से आजमेर ठारे अवस्थापित कले 1194 कनौज अधीन को आसीगला बनारस अधीन को आसीगला एमती आउ सब छोट छोट युद्ध होती जोड़ाक आम केवल मुख्य युद्ध गुड़िक आम आलोचना कले आ गोटे विषय सिलेबस अच्छी राजपूत मानकर पराजयर कारण एवं तुर्की मानकर विजयर कारण कौन है कौन कारण थिला जे राजपूत माने पराजित हेले एवं तुर्की माने जयलाभ करथिले प्रथमे ब्रिटिश इतिहासकार माने कौन कहते एटी गोटे जेहेतु ब्रिटिश इतिहासकार मान कथा आसला मुझे इतिहास छात्र मान को सचेतन करदेवी जे ये तो पुरातन इतिहास सुल्तान पीरियड इतिहास एथरे मैनिपुलेशन हेनी किंतु परवर्ती काल रे आधुनिक भारत इतिहास रे ब्रिटिश इंग्रेज इतिहासकार माने भारत इतिहास को माने पदस्थ करके अपभ्रंश करी उपस्थापन कर जो आम जो आधुनिक इतिहास पढ़ा ब्रिटिश इतिहासकार मान इतिहास को टिके इग्नोर करने उचित हम कारण आमर जो माने भारतीय इतिहासकार माने जो कथा आलोचना कर तार सत्यता अधिक से जा सुल्तान मध्ययुगीय इतिहास रे आम पाखे किसी नथिला विवरणी तेणु ब्रिटिश इतिहासकार माने जहाँ कहले से माने कहले प्रथम कारण मध्य एशियार जो मुसलमान माने आसिले से माने योद्धा संप्रदाय से माने आदिवासी थे तांको विधिवत भाव सामरिक शिक्षा दिया युद्धर ट्रेनिंग नौते भारतीय राजपूत माने तुलन रे थिले उदार
तार अर्थ हूँ से शत्रु को निहत करने को दंड मान तिले मात्र पछ माने चिंता करुनथिले किंतु भारतीय राजपूत मानकर हृदय बड़ थिला जदि कई शरणापन्न होता से ताकू क्षमा देवाई पछघुंचा दौन जदिओ से पछपटे बुलिकी हत्या करुला ये गोटे कारण जे भारतीय राजपूत मान उदार थे से दुर्दश थे जदुनाथ सरकार और मोहम्मद हबीब एक सुदृढ़ मत देते मत है जे राजपूत माने राजा युद्ध करुले दरमा युद्ध करुले किंतु मुसलमान माने धर्म नार युद्ध करुले अल्लाह युद्ध करुले तेणु राजपूत माने अर्थ और जेहेतु राजपूत मानकर डेडिकेशन कम थिला तेणु ये माने मुसलमान माने भारी पड़े। अच्छा क्षत्रिय माने अन्य सैन्य मान को समचक्षुरे देखु नथिले जाति प्रथा जो अन्य जातिर सैन्य मान को क्षत्रिय सैन्य मान टिके नीच आखिरे बा अंडरएस्टिमेट करथिले किंतु मुसलमान मान भीतर समता थिला से माने वो समस्त को ताका आगे समस्त समान थे भाई भाई से युद्ध करते किंतु राजपूत सैन्य मान भीतर से श्रेणी भाग विभाग थिला तेणु से माने कारण से बेसी आग्रेसिव थिले से माने बेसी सक्षम थिले से माने बेसी पारंगत हेले किंतु हिंदू माने दुर्बल हो गए बा राजपूत मान घोरी मानकर कौशल अनन्य थिला भारतीय मान कौशल ठारू से उन्नत कौशल अवलंबन करते जमी द्वितीय तिरुर युद्ध कौन है मोहम्मद घोरी जदिव पृथ्वीराज को गोटे विशाल सैन्य थिला विशाल बाहिनी थिला मोहम्मद घोरी कौन कले हल्का हल्का युद्ध सरंजाम नहीं आक्रमण कले छोट सैन्य बाहिनी नहीं आक्रमण कले एवं चारिपटू घेरी छोट छोट सैन्य सरंजाम को गोटे जगह आ गोटे जगह स्थानांतरित करने सुविधा होता लाइट वेट एमुनिशन से धरिकी आक्रमण करने द्वारा से पृथ्वीराज द्वितीय तिरुर युद्ध परास्त होते तेणु कौशल थिला उन्नत एवं पाखे जो अस्त्र शस्त्र थिला सेटा बेसी शक्तिशाली एवं उपादेय थिला जमती आम मूल आलोचना करते जो पहाड़ में मिलूला अफगानिस्तान अंचल जो लुहा पथर मिलूला से उन्नत धरण लुहा से आमदानी कर राजपूत मानक एकतार अभाव थिला सतीश चंद्र जन ऐतिहासिक सी जे भारतीय नेतृत्व दुर्बल था भारतीय सैन्य मैंने पार्ट टाइम योद्धा थे अवसर समय से युद्ध करते किंतु तुर्की माने ता नथिले से युद्ध करने ही जन्म होते मरिया इस्लाम ना मरिया से प्रस्तुत थिले आ गोटे कारण सतीश चंद्र कहते जे राजपूत माने निजको ओवर एस्टिमेट कले निजको अपेक्षा अधिक शक्तिशाली मन कले द्वारा ये बड़ बड़ भूल है तेणु से पराजय वर्ण करने बाध्य है आ गोटे कथा एमाने विदेश को जाकरी अन्य ज्ञान कौशल शिक्षा इच्छुक नथिले कारण हिंदू मान विश्वास था जो समुद्र पार करेंगे जाति खराब हो तेणु से विदेश को गले ना कूपमंडू गोटे जगह रहिले बरंच
ବୈଦେଶିକ ମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ କାହା ସହିତ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ସେ ସେଥିରେ ନିପୁଣ ହେଇସାରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ କାରଣରୁ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମାନେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସିଲାବସରେ ସେ ହଉଛି ଗଜନୀ ଏବଂ ଘୋର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ टिप्स ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ପଢୁଛେ ଇତିହାସ को हिज स्टोरी ताको कहानी गप आकार में पढ़िया पे चेष्टा करिबा किंतु हमर जो सिलेबस अछि इग्नोर ये सिलेबस टा अत्यधिक इनफॉर्मेटिव एथरे बहुत प्रकार तथ्य संग्रह करी एथरे शामिल करा है इते गुडा तथ्य को मु जहा जहा कहि गली ये केवल पछा पछा किसी तथ्य मु उपस्थापना कली या छड़ा भी आउ बहुत तथ्य जो मानक पाखे स्टडी मटेरियल अछि सब जानि पड़थबे ताको बहुत तथ्य अछि एते तथ्य को उपस्थापन करिया पई समय दरकार एवं मेमोरी दरकार सब तथ्य इंपोर्टेंट किंतु किछि तथ्य को हमें बाछि के बाहर करे जोगुडा को एकांत आवश्यक जहा को हमें उपस्थापन करबा बांछनीय जेमति मु जो तथ्य सब उपस्थापन करी बाछि बाछि ए भितरु मु उपस्थापन करी गली आउ को तथ्य को बाछिवा को तथ्य को रखिवा को तथ्य को छाड़ीवा सेथि पई मोर गोटे एडवाइस होचे जे आमे पुराना क्वेश्चन को टिके देखिबा की प्रकार प्रश्न को विषय ऊपर आसुचे ताको टिके निहाती देखिबा दरकार क्वेश्चन पेपर सब हमको वेबसाइट रे मिल जाउची गोटे क्वेश्चन न देखले हमर अग्रगति टिके धीमा हेबो आउ गोटे अनुरोध करी जेतबळे विषय भलो न लागियो पढिया पे प्लीज डू नॉट रीड पढो नै छाड़ी दो किछ समय गिव अ ब्रेक गोटे ब्रेक दियंतु तापर पुणी पढो जो पर्यंत विषय वस्तु रे हमर मन न लागिछि विषय हम मन भीतर प्रवेश करिवो ना आ घोषी के मन रखियो हम द्वारा संभव न एतो विशाल इतिहास प्रांगण में हो वर्तमान आम तुलनात्मक विश्लेषण करवा कंपैरिजन बिटवीन गजनी एंड घोर घोर आउ गजनी मान भीतर गोटे तुलना सतीश चंद्र ये तुलना कहते मामूद को अपेक्षा घोरी उत्कृष्ट थिले घोर कारण घोरी पराजय शिक्षा करते जोटा आमको भी आमे भी करवा उचित घोरी जो परास्त होती से कहीं पराजित हेले तार कारण अन्वेषण करते पुनर्जमी प्रथम युद्ध परास्त होला से बुझीगले कौन कौन कारण से पराजय लाभ कले तेणु से पुणी थे सैन्य शक्ति संचय कर द्वितीय तुरनी युद्ध अवतीर्ण हेले आ गोटे कारण हूँ घोरी राजस्थान में परास्त हेले से राजस्थान दिगरे अग्रसर हेले बर पंजाब दिग को मुहाइले तेणु घोरी माने बेसी सक्सेसफुल होते और बेसी सफल होते आउ गोटे सुविधा है घोरी को जे मामूद मूलदुआ पकई दे गले बाट फिटे दे गले घोरी को अग्रसर होगा सुविधा है तो आम जो विश्लेषण करुचे घोरी गजनी माने मामूद बाट फिटे फिटे गले घोरी से बाटे माड़ी चलिए गजनी और तुर्की गजनी जो भारत आक्रमण कले कही 20,000 कृतदास सहयोग करने
स्वतः निजको ऑफर करथिले सेमाने धीरे धीरे पारसिक नीति अवलंबन करी टिके शांत स्वभाव रहीगले फल परवर्ती काल रे घोरी माने तांको ओवर पावर करिया पई सुजोग पाइगले गर्जनी राजा माने केन्द्र शासन करिया पई भल पाउथले किंतु घोरी माने डिसेंट्रलाइज शासन करथले जेमति मु कहली गोटे एग्जांपल जोठी जो अंचल जय करथले से राजा का अधीन तांको छाड़ दउथले हेले विकेंद्रीकृत शासन करिया पे से पसंद करथले गजनी माने मामूद आसिथिले केवल लुंठन करिया किंतु घोरी लुंठन करने सहित भारत में एक सुदृढ़ शासन प्रतिष्ठा करने सक्षम हो तेणु ये हूँ भितर फरक गजनी माने खाली लुंठन गले घोरी भारत में सुदृढ़ शासन व्यवस्था कर ये है आमर यूनिट 12 परिसमाप्ति आम यूनिट 13 पढ़ा यूनिट 13 रे गोटे स्वतंत्र विषय अच्छे यूनिट 13 भितर 500 वर्षर इतिहास को इतिहास सारांश कढ़ाई को विषय जमी राजस्व और कृषि भित्तिक संपर्क ये तीनोटी मुख्य विषय उपरे आमर ये अध्याय लेखा है कौन कौन जमी राजस्व और कृषि भित्तिक संपर्क किपरि थिला 500 वर्ष भीतर तमाने 700 ठार 1200 ख्रीष्टाब्द पर्यंत कृषि एवं राजस्व एवं जमी जमार अवस्था कौन से आमको आलोचना करने गोटे आब्स्ट्राक्ट विषय तेणु एथरे घटना प्रवाह ना तारीख ना 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 किंतु विश्लेषण अच्छे तो या अलग प्रकार माइंड रे अलग प्रकार या विचार करने को पड़े कौन है धीरे धीरे भूल जातु युद्ध बुद्ध को छाड़ी मुंड को काढ़ी एना गोटे अलग पाठ आम आलोचना करुचे धीरे धीरे चाष जमी और तार गुरुत्व को उपलब्धि करने लगे कारण जीविका जीवा पाई एकमात्र पंथा होची चाष व्यवसाय अर्थ आमदानी हेले कौन हम खाद्य तो एकांत आवश्यक खाद्य कौटू आसो खाद्य चाष जमी आसो जदि कृषि ना चाष ना उत्पादन नहीं आम कौन टंका खाइबा तेणु चाष को अग्राधिकार दवा आरंभ है समस्त उपलब्धि कले यही 500 वर्ष भितर धीरे धीरे समस्त मन भीतर चाष प्रति इंटरेस्ट बा आग्रह वृद्धि पाइबा चाष पाई कौन कौन दरकार जमी दरकार चाषर राजस्व व्यवस्था हवा दरकार एवं जमी मालिक मान सहित जमी जमा सहित संपर्क स्थापित हवा दरकार यार पूर्वर कौन थिला चाष जमी को अर्थ आकार व्यवहार करा फॉर एग्जांपल सरकार चाकरी जे सरकार को चाकरी करछि राज परिवार चाकरी करछि तार खणी जमी दे दिया जाउछ दरमा दिया जाउछ जमी से तार चाष बास करी जहाँ पैसा पाउतला से तार संसार चलाउतला एवं सरकारी कार्य करुथला मंदिर मान को दे दिया जाउथला मंदिर परिचालना पे ब्राह्मण मान को दिया जाउथला ज्ञान शिक्षा एवं मंदिर परिचालना पे मुसलमान मान जो भारत को आसिले सेमानक ठारू भारतीय माने शिक्षा कले जे टंका आकार मध्य सेटलमेंट करी होउछ तो चाष जमी को या द्वारा राजस्व क्षति हला
एथर अनुभूत है जो मुसलमान मान सहित संस्पर्श आसिले मैंने जानिले जे चाष जमी को चाष जमी आय होउथिबा अर्थ द्वारा ही ये कार्य ये सब मेंटेन हो पारिबो। चाष जमीर जो गुरुत्व वृद्धि पाइला सेतबेले बृहत चाषी मध्यवित्त चाषी क्षुद्र चाषी सृष्टि है जो गुरुत्व बढ़ीगला विभिन्न प्रकार चाषी कूल देखा मिले आम आलोचना कर जमी जमी जमा पर भाग चाषी कृषि भूतक सृष्टि है मैंने गोटे प्रकार चाषी कूलर देखादेला। चाष जमी वर्तमान मध्यवर्ती जुगर एक गुरुत्वपूर्ण आयर पंथा होगला एवं चाष जमी व्यक्तिगत संपत्ति परिवर्तित होगा लगे। चाष जमी आगुरी राजा ऑटोमेटिकली राजा किंतु धीरे धीरे यार मालिकाना दिगला अन्य जो सामंत प्रथार जो सामंत मान जमीदारी प्रथा उन्मेष एठी जमी भितर आम आसवा जमी दान लैंड ग्रांट्स। जमी दान कहले ब्राह्मण और धर्म अनुष्ठान मान को दान दि जाउथिला मंदिर परिचालना एवं ब्राह्मण मान को जमी दान करा जाउथला तांकर मेंटेनेंस पे। भूदान आरंभ होता चतुर्थ रु पंचम शताब्दी मध्य कौन पाई भूदान परंपरा चतुर्थ पंचम शताब्दी दक्षिण भारत आरंभ होता आज टोकन ऑफ ग्रेस कहा ऊपर संतुष्ट है जो दान दि जाउथला पुरस्कार आकार दान दि जाउथला। दुई प्रकार दान थिला भूदान कौन धार्मिक दान रे कौन थिला ब्रह्मदेव ओ देवदान। ब्रह्मदेव देवदान ब्रह्मदेव कहले एकाधिक ब्राह्मण मान को जो दान दि जाए ताको ब्रह्मदेव कह जाउथला आउ मंदिर परिचालना जोटा दि जाउथला ताको देवदान। आ गोटा होची अग्रहार आउ एक प्रकार दान दि जाउथला ताको अग्रहार कह जाए। अग्रहार अर्थ होची गोटे गोटे अंचल को गोटे गोटे ग्राम को किसी जमी जमा दान रे दिया होता से माने ये जमी चाष करी खाद्य प्रस्तुत करथिले कर राजा को दउथिले सैन्य बाहिनी मेंटेन करथिले एवं आवश्यक स्थले राजा को पय युद्ध रे अवतीर्ण होथिले। सप्तम शताब्दी बेलू राजकर्मचारी मानकर भरण पोषण निमंते ये जमी जमा दिगला परमानेंट सेटलमेंट कर दिगला सारा जीवन पाई राजकर्मचारी मान को जे जो पोस्ट रहिला जेमती हमर वर्तमान अमुक चाकरी पाई एतिकी दरमा अमुक चाकरी पाई एतिकी दरमा फिक्स करा होते सेतबेले अमुक पोस्ट पाई एतिकी जमी अमुक ये पाई एतिकी जमी थिला तेणु जार से परिमाण जमी आवश्यक से पोस्ट पाई लालायित होतला बा से पोस्ट जॉइन हो ये हूँ जमीदान व्यवस्था। हाँ आउ गोटे प्रकार जमीदान दिया सैन्य मान जो माने नियमित सैन्य विभाग रे जोग देते युद्ध समय राजा को युद्ध सहयोग करते अन्य समय जमी जमा चाष करी भाग लगे जो आय करते भरण पोषण करते। लैंड राइट्स जमी जमार अधिकार को मान को दिया आर एस शर्मा या विशेष भाव विचार कर मत चाषी हेले मालिक तीन प्रकार मालिकाना देखा जाता चाष जमीर चाषी माने थिले मालिक आ एक प्रकार मालिकाना राजा माने थिले मालिक आउ एक प्रकार मालिकाना देखा जाता जे उभय जॉइंट ओनरशिप चाषी और राजा दी जन जाक जमी मालिक थे तेरे जमीर मालिकाना ये तीन जन पाखे आइदर राजा पाखे
जमीर मालिक उपर थिला किंबा उभयଙ୍କ पाखरे थिला। तापरे किंतु आमे टिके जदि एठे मेंशन करबा अतीत नै अवस्था नथिला, अतीत सब राजांक अधीन रे थिला। याज्ञवल्क ओ बृहस्पति एमानक ग्रंथर उल्लेख करछन। याज्ञवल्क और बृहस्पति तांके ग्रंथर उल्लेख करछन जे महिपति थिले राजा जांक अधीन रे जमी जमा थिला। क्षेत्र स्वामिनी जे जमीर मालिक राजा पर जे जमीर मालिक ताको क्षेत्र स्वामिनी कह जाउतला। एमानक ना सब उल्लेख अछि याज्ञवल्क आ बृहस्पति लेखारे। कृषक जे चाष करे एवं भाग चाष धीरे धीरे जमीदारी प्रथा आसला। जो जो जमी मालिक मान अधीन अधिका अधिका जमी है निजक जमीदार बोलेले सामंत बोलेले। एमान को कहगला महामंडलेश्वर मंडलेश्वर मंडलिक एमती सब से उपाधि धारण करी चाष करवा बा चाष जमीर मालिकाना एंजॉय करते बा उपभोग करते। या परे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था विषय माने यही जो 500 वर्ष 700-1200 ख्रीष्टाब्द भीतर ये 500 वर्ष भीतर राजस्व व्यवस्था कौन थिला। सब बड़े वस्तु आकार रे राजस्व संग्रहित होता ये समय टंका आकार होता एवं रोजगार प्रधान आधार थिला चाष। चाष यदिओ व्यवसाय आदाय होता किंतु मूल स्रोत थिला राजस्वर चाष एवं सब जिनिस आकार कर राजस्व आदाय करा जाउता। राज्य सब भरणा खर्च वृद्धि होता माने प्रति वर्ष जे समान खर्च हम राज्य किसी माने नहीं। तार कारण तार किसी गोटे कारण आगे आलोचना करदवा। राज्यर खर्च सब कौन पाई होता प्रजा मंगल पाई होता। कोठी केना फल हम कोठी जलसेचन हम ये सब पाई लोकों को जेहेतु चाष जमी से अधिक उत्पादन करुले तो सुविधा जोगी देवाई अधिक अर्थर आवश्यक पड़ूला एवं प्रजा युद्ध युद्ध हेले खर्च बढ़ुला निरापत्ता ताकर सिक्योरिटी पाई मध्य खर्च होता। तापरे ब्रह्मदेव देवदान होता ब्राह्मण मान जो दिगला से कर आसुना देवता मान जो दिगला कर आसुना फल धीरे धीरे राज्यर आय वृद्धि करने दरकार पड़ा। तेणु से धीरे धीरे विभिन्न प्रकार यही सब कारण प्रजा मंगल युद्ध राजखर्च आउ निरापत्ता एवं मंदिर बाड़ी परिचालना जो खर्च हम से धीरे धीरे कर मात्रा वृद्धि होगा लगे। केते गुड़ा कर से जमी कर लागू होता है ना गुड़ाक दिखाई भोग भाग कर उपरी कर हिरण्य ये सब ना विभिन्न प्रकार कर से आदाय करा ये सब कर ना सब एमती तापरे जमी मालिक और कृषक हर्षवर्धन परे चाषी माने हेले उत्पादक और करदाता। हर्षवर्धन पर्यंत हर्षवर्धन परे यही जो पीरियड आम आलोचना कर 500 वर्ष इतिहास या भितर चाषी माने हेले उत्पादक और करदाता से माने कौन कौन कर दौले भोग भाग कर उपरी कर हिरण्य उद्रंग इत्यादि इत्यादि नाम से कर दवा पड़ता। ये विषय
रणवीर चक्रवर्ती कहती जे चाषी माने जो कर दौले आउ राजा माने जो कर पाउले या भितर किछि मध्यस्थी मध्य थिले कर आदायकारी और से माने किछि किछि पारिश्रमिक नौथे ताका पाखरे किछि पैसा रहि जाउथला सीधा चाषी मानक पाखरु राजकोष राजस्व रे पैसा पहुंची पारु नथिला तेणु रणवीर चक्रवर्ती कहचंदी जे मझिरे किछि मिडिल मैन बा मध्यस्थी जहाँ आम टे सस्ता भाषा दलाल थिले जो माने तांकर सर्विस पाई किछि पैसा मझिरे आत्मसात करुथिले तापर आ गोटे विषय आसला हमर आग्रारियन रिलेक्शन जमी मालिक जमी सहित कि प्रकार संपर्क थिला भारतीय परंपरा रे जमी को धरित्री को माता बेलिगिरी कहा जाए मां को ठारू आमे आमर समस्त प्रकार खाद्य आदाय करू आमे कर्षण करू जमी को आमे कर्षण करू किंतु माने आमे जमी को खंडिया खावड़ा करू ता परिवर्ते से हमको खाद्य दे तेणु केवल मां ही संभव आमे मां को जिते जहाँ कले से आमको पोषण दे था धीरे धीरे जमीर एक्सपेंशन केते आला जिते अनुभूत है जे जीविका सह खाद्य जोगाइबा खाद्य मध्य एकांत आवश्यक धीरे धीरे जमी मात्रा वृद्धि करा लगे एमती बहुत जगह थिला जोगुड़ाक टांगरा भूई थिला अनुर्वर थिला ताकू सब चाष उपयोगी बनिगला धीरे धीरे कारण एक तो राजा माने चाहिए अधिका कर आदाय करेंगे चाषरु अधिका कर आय करेंगे लोक संख्या बढ़ेगा खाद्यर कंजम्पशन बढ़ेगा पुणी उत्पादन से अनुसार बढ़िया दरकार उत्पादन लिमिटेड जो चाष जमी थिला चाष जमीर मात्रा वृद्धि करने जो जो अंचल चाष होता चाष उपयोगी जंगल पोड़ू चाष कर जंगल पोड़ी चाष करागला जो पानी अच्छी पानी ना से जलसेचन करागला कृषि उन्नति पाई विभिन्न प्रकार पद्धति अवलंबन करागला ता भितर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट आरंभ होगा को किसम रे भल आमदानी होची गोटे जमी रे केते प्रकार चाष हो पारिबो वर्ष सारा किपर से आय करा जाय पारिबो बिहन शोधन हो पारिबो इत्यादि इत्यादि चाषीर उन्नति पाई व्यवस्था करागला तापर आ गोटे शेष विषय होची आग्रारियन इकोनॉमी आयर मूल स्रोत थिला चाष आमे जेहेतु पढ़ी आसिले डीडी कोसंबी जने भारतीय ऐतिहासिक जहाँ सुंदर भावे अनुशीलन करचंती वर्णना करचंती जे आयर मूल स्रोत होची आग्रारियन इकोनॉमी जे जो पर्यंत जमी जमारू आय न हेची से पीरियड कथा बर्तमान तो आयर विभिन्न प्रकार पंथा अछि किंतु दुखर विषय होची एबे आयर विभिन्न पंथा थिले मध्य खाद्य आमदानी कमिबाकू लागिलाणी सेति आमे सब सचेतन हवा दरकार एवं खाद्य किपरि आम कृषि किपरि उन्नति हम से समस्ते प्रचेषा करने आवश्यक विदेश मत लगुच आमर आज आलोचना परिसमाप्ति है समस्ते सचेतन नागरिक हिसाब से कृषि केन्द्र प्राधान्य पाइब अग्राधिकार पाइब से टिके टिके कंट्रीब्यूट करने आवश्यक धन्यवाद आज एठी हमर 13 यूनिट समाप्त है नमस्कार।